بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے ان عظیم ترین حکمرانوں میں سے وہ واحد حکمران تھے جو اپنے سب سے بڑے وفادار سپاہی پر بھی کبھی آنکھ بھر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی زوجہ خاتون کے درمیان اہم راز جو سلطان اور آپ کی زوجہ کے درمیان ہوتے تھے وہ دشمنوں کے پاس جانے لگے، تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو سب سے اہم خطوط ہوتے وہ اپنی زوجہ کو دیتے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ خطوط سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے غائب ہو جاتے اور وہ خطوط دشمنوں کے قلعوں میں پہنچ جاتے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ سلطان کے کمرے کے ارد گرد سخت پہرا ہوتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بھی اہم خطوط یا کوئی راز کی بات صرف عشاء کی نماز کے وقت اپنی زوجہ کو بتاتے، اور اس وقت کمرے کے ارد گرد بہت محافظ ہوتے اور حتیٰ کہ سلطان کی آواز اتنی کم ہوتی کہ کمرے کے کونوں میں کھڑا آدمی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتنے بڑے راز دشمنوں کے پاس کیسے جانے لگے، اور اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک دفعہ بہت بڑی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ بات سلطان تک پہنچی کہ سلطان کے اہم راز جو آپ کی اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں وہ دشمنوں کے پاس جانے لگے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران پریشان ہو گئے اور ایک بزرگ کو اپنے محل بلایا اور اس سے تدبیر پوچھی۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آج رات جب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کمرے میں آرام کرنے لگنا تو اس وقت ایک گلاس پانی کا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے سلطان گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور بڑے بڑے حاکم گزرے، لیکن اسلام کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑوا کر مسلمانوں کے قبضے میں دیا تھا، اور یہ اعزاز آپ کے بعد کسی اور کو نہ ملا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنی خوف کی ایک داغ بٹھا دی تھی کہ سلطان کے اس دنیا سے جانے کے چند صدیاں بعد بھی دشمن آپ کی بہادری سے خوف کھاتے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی بانی ارطغرل غازی کے باپ سلیمان شاہ جب ہجرت کر کے حلب آنے لگے تو صلیبیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے سلطان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کائی قبیلے کے لوگوں کو حلب کی سرزمین پر داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ صلیبیوں کو خوف تھا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہ جانتے تھے کہ اسی طرح ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر پلنے والا نوجوان جس کا نام یوسف تھا اور بعد میں وہ صلاح الدین بن گیا، اس نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوف آپ کے جانے کے بعد کئی صدیوں تک گزرنے کے بعد بھی دشمنوں کے اندر موجود ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے بہت اہم راز تھے۔ جو سب سے بڑی طاقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی جاسوسی کرنے کے لیے خود چلے جاتے، حتیٰ کہ سلطان کے لشکر کے اندر بہت بڑے وفادار سپاہی موجود تھے جو سلطان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کسی سپاہی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زوجہ اسوہ دین خاتون کے ساتھ چند اہم راز جو سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے اہم سمجھتے اپنی زوجہ کو ضرور بتاتے، اور اسود خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بعد جو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے وہ اپنی خاتون پر کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی مکمل معلومات لے کر اور مکمل اپنی سپاہیوں کی تیاری کے ساتھ صلیبیوں کے ایک قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے، تو آگے سے صلیبیوں نے سلطان کے لیے گھات لگائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس گھات کے اندر سلطان کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور سلطان کو عارضی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ سلطان کی زندگی میں بہت کم ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ پر جاتے اور پیچھے واپس آ جاتے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے منصوبہ صلیبیوں کے قلعے حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا وہ صرف میں اور میری زوجہ خاتون جانتی تھی۔ اس بات کا ذکر میں نے اور کسی کے سامنے نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے منہ سے بھی کبھی یہ لفظ نہیں نکالا۔ یہ سارا کام میں خفیہ طریقے سے کرتا رہا، لیکن صلیبیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ان کے فلاں جگہ پر حملہ کرنے والا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل لوٹے۔ سلطان کے چہرے پر بہت بے چینی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران پریشان تھے۔ جب آپ کی زوجہ نے آپ کو اتنا پریشانی کی عالم میں دیکھا تو وہ جان گئی کہ یہ ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑی مشکل سے نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ آپ کے لیے ایک گلاس پانی کا لانے کے لیے جانے لگی تو اسی وقت سلطان محترم نے انہیں روک دیا اور کہا، تم مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلانے سے پہلے بس مجھے ایک بات کا جواب دو کہ جس صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے میں جانے والا تھا اس کا ذکر
जिक्र मैंने अपने सिपा सलार से जाने से पहले नहीं किया था। एन उसी वक्त मैंने अपने सिपाहियों के सामने जिक्र किया तो बताइए सलीबियों ने इतने दिन पहले किले की हिफाजत और हमारी घात के लिए तैयारियां कैसे कर ली थी, क्योंकि उसका जिक्र सिर्फ तुम्हारे आगे हुआ था। ये सुनकर सुल्तान की बीवी खामोश हो गई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी समझ गए कि ये मेरी बीवी ने किसी को कुछ नहीं बताया। आपकी जोजा के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि सुल्तान के सामने वजाहत करती। बस आपके चेहरे से सुल्तान ने पहचान लिया कि ये राज किसी और तरीके से बाहर गया है। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हैरान होने लगे। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने गिलास पानी का रखा और उसी वक्त दौड़ते हुए अपने खास कमरे के अंदर गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खास कमरे के अंदर आपके उसी कमरे के नीचे एक खुफिया दरवाजे से एक तह खाना बना हुआ था। उस तह खाने की दीवार के अंदर सुल्तान ने एक संदूक रखा हुआ था और उस संदूक के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने सबसे कीमती खतूत रखते थे। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उस संदूक पर पहुंचे तो देखा कि जो सबसे अहम खतूत थे वो वहां से गायब हो चुके थे। ये देखकर सुल्तान के तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सुल्तान की जिंदगी में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए, क्योंकि सुल्तान को शक हो गया कि जरूर गद्दार इसी महल के अंदर होगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने माहिर जासूस को बुलवाए और खुफिया तरीके से पूरे महल की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सबूत ना मिला जिससे ये साबित हुआ कि कोई गद्दार महल के अंदर दाखिल हुआ। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने खुद पूरे महल की निगरानी की, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब तक इस मसले को हल नहीं कर लेते उस वक्त तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जिस भी अहम मामले पर मशावरत करते वो दुश्मनों तक पहुंच जाती। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के गहरे राज दुश्मनों तक पहुंचने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने सबसे करीबी सिपाहियों को अपने कमरे के अंदर बुलाया और उन्हें कहा, आज से चंद दिन पहले क्या कोई महल के अंदर ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई थी, कुछ ऐसा हो जो मामूल से हटकर हो, क्योंकि जो भी गद्दार है वो इस महल के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको तलाश कैसे किया जाए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सारे सिपाही एक दूसरे का मुंह तकने लगे, क्योंकि उन्होंने महल के अंदर कोई भी तब्दीली रूनुमा होती हुई नहीं देखी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सख्त परेशान हो गए और शाम के वक्त अपनी जोजा को अपने कमरे के अंदर बुलाया और कहा, तुम तैयारी करो, हम चल रहे हैं। खतून ने उसी वक्त तैयारी पकड़ ली। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी बीवी को घोड़े पर बिठाया और सुनसान वादी के अंदर ले गए। सारे सिपाही हैरान थे कि आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अकेले अपनी जोजा को लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जब भी सुल्तान कहीं बाहर जाते चंद खास सिपाही आपके साथ जरूर होते। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी बीवी को घोड़े पर बिठाया और सुनसान वादी के अंदर ले गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस वादी के अंदर पहुंचे तो आपकी जोजा ने पूछा, हुजूर आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप मुझे इस वादी के अंदर ले आए? तो सुल्तान ने कहा, मैंने तुमसे कुछ खास बातें पूछनी थी। ये सुनकर आपकी खतून ने कहा, हुजूर सबसे महफूज जगह आपका कमरा है, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तो सुल्तान ने कहा, मेरा कमरा महफूज था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि जो राज इस कमरे के अंदर खुला वो चंद ही दिनों के अंदर इतना दूर किले के अंदर चला गया, तो मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि ये ना समझ सकूं कि आखिर बंद कमरे के अंदर होने वाली बातें इतनी दूर कैसे जा पहुंची। जरूर उस कमरे के अंदर कोई गद्दार मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। आपकी जोजा बड़ी हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि उसने सुल्तान को इससे पहले इतना ज्यादा परेशानी में कभी नहीं देखा था। सुल्तान की बीवी ने कहा, हुजूर अब आगे का क्या इरादा है? हम उस गद्दार को कैसे तलाश करेंगे? ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं तुमसे जो पूछता हूँ तुम मुझे बताती जाना, बस आपकी बातों से ही मैं गद्दार को तलाश कर लूंगा। आपकी जोजा बड़ी हैरान और परेशान हो गई और कहा, हुजूर मेरी बातों में आपको कैसे गद्दार की पहचान हो गई? सुल्तान ने कहा, बस मैं जो पूछता जाऊँ वो तुम बताती जाओ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, तुमने किसी भी बात का जवाब गलत नहीं देना, जो सच हो वही बताना, वरना तुम्हारी एक गलती से हमारे कई सिपाहियों की जान जा सकती है। अब आपकी जोजा सुल्तान के सामने बैठी सुल्तान के सारे सवालों का जवाब देने लगी। सुल्तान ने कहा, बताओ क्या तुम आज से चंद दिन पहले महल से बाहर किसी से मिलने गई थी? उसने कहा, नहीं हुजूर मैं तो किसी से नहीं मिलने गई। तो फिर सुल्तान ने पूछा, क्या कोई महल के अंदर आपका ऐसा कोई खास मेहमान आया जो आज से पहले कभी ना आता? उसकी जोजा ने कहा, नहीं हुजूर मेरा नया मेहमान पहले जो कभी ना आया हो वो कभी नहीं आया, लेकिन हाँ बस मेरी एक दोस्त है जो कि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी, लेकिन एक दफा मैंने उसकी जान बचाई तो वो मुसलमान हो गई और उसकी और मेरी दोस्ती हो गई, तो वो हर माह मुझसे मिलने के लिए मेरे महल आती है। तो सुल्तान ने कहा, क्या उसके साथ कोई और था? सुल्तान
की जोजा ने कहा, नहीं सुल्तान मोजिम, उसके साथ जो सिपाही थे वो बाहर ही रुक गए, बस मैं उसे अपने कमरे के अंदर लेकर गई थी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, क्या उसके साथ कोई और चीज थी या उसने तुम्हें कोई चीज तोहफे में दी थी? उसने कहा, नहीं सुल्तान मोजिम, उसने मुझे कोई खास चीज तोहफे में नहीं दी। फिर सुल्तान ने कहा, आखिर माजरा क्या है, कोई बात तो है जो मुझसे छुप रही है। तो इतने में खतून ने कहा, सुल्तान हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल गई। एक खूबसूरत पुतला जो कि बिल्कुल आपकी शक्ल को देखकर बनाया गया, वो हमारे कमरे के अंदर जो रखा गया है वो मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, वो पुतला जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा था? सुल्तान की जोजा ने कहा, जी हाँ सुल्तान, वही पुतला। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त अपनी बीवी को बाजू से पकड़ा, घोड़े पर बिठाया और महल ले आए। खतून अभी महल के सहन में थी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दौड़ते दौड़ते अपने उस खास कमरे के अंदर जा पहुंचे जिसके अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी जोजा से अहम मालूमात पर बातें किया करते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने कमरे के अंदर पहुंचे तो सुल्तान ने उस पुतले को अपनी जगह से हटाया तो सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि असल में उस पुतले के अंदर एक खास खोल बनाया गया था जो कि उस पुतले के अंदर खड़ा हो सकता था और किसी को महसूस भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पुतला अंदर से खोखला था और बाहर एक खास किस्म के पत्थर से तराशा गया था। और सबसे हैरानी और परेशानी की बात तो ये थी कि उस पुतले के नीचे एक लकड़ी का तख्ता था। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस लकड़ी के तख्ते को पलटा तो नीचे एक सुरंग नजर आई। ये देखकर सुल्तान के होश उड़ गए कि ऐसी सुरंग जो बिल्कुल सुल्तान के कमरे के अंदर मौजूद है और मुझे खबर नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरी जोजा को बुलाकर लाओ। सिपाही बुलाकर लाए तो सुल्तान ने कहा, क्या इस पुतले को आपकी दोस्त ने यहाँ रखा था? उसने कहा, नहीं सुल्तान, इस पुतले को मेरी दोस्त के दो मुलाजिम थे, उन्होंने यहाँ रखा था। सुल्तान ने कहा, क्या जब वो इस पुतले को इस कमरे के अंदर रखने के लिए आए थे उन्होंने कितना वक्त लगाया? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जोजा ने बताया, सुल्तान, उन्होंने पुतले को रखा लेकिन पुतला वहाँ हिलने लगा तो उन्होंने चंद लम्हे लगाए और उस पुतले को वहाँ पर सीधे तरीके से रखा। लेकिन उस वक्त मैं अपनी दोस्त के साथ बातों में मसरूफ थी और मैं देख ना सकी कि आखिर वो पुतले के साथ क्या कर रहे थे। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त पुतला उसी जगह पर रख दिया और अब इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तलवार निकालकर पुतले के करीब बैठ गए। बस सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने पुतले के साथ कान लगाना शुरू कर दिए। चंद ही लम्हे गुजरे, सुल्तान को महसूस हो गया कि इस पुतले के अंदर आज से पहले जो भी जासूस आता था वो अब पहुंच चुका है। उस पुतले की आंखों से वो सारा मंजर देखता और उस पुतले के लगे हुए कानों से वो सारा कुछ सुन लेता था। बस सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त पुतले के ऊपर तलवार मारी, पुतला टूट गया और उसके अंदर मौजूद गद्दार जमीन पर गिर गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो और आखिर मुकम्मल मंसूबा बताओ। उसने कहा, सुल्तान, आपकी जोजा की जो दोस्त थी उसको हमारे बादशाह ने पकड़ा और उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उसने वादा किया कि मैं ये पुतला आपकी जोजा के पास लेकर जाने में मदद करूंगी। हमारे बादशाह ने उस खतून के साथ अपने सिपाही भेजे और पुतला लेकर यहाँ पहुंची और फिर हमारे सिपाहियों ने बड़े ही तरीके से इसी जगह पुतला रखा और नीचे एक निशान लगा दिया। लगाने के बाद उन्होंने पुतले ऊपर रखा। वो सिपाही इतने माहिर थे कि उनको पता चल गया कि हम यहाँ से सुरंग महल से बाहर कैसे ले जाएंगे। वहाँ से जाने के बाद उन सिपाहियों ने वहाँ सुरंग खोदना शुरू कर दी और वो सुरंग सीधा उस पुतले के नीचे जाकर खुली। उस पुतले के अंदर खोल था जिसके अंदर एक आदमी बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता था और आपको पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं उस सुरंग के जरिए इस पुतले के अंदर दाखिल होता और रात के वक्त आप जो भी बातें अपनी खतून से करते वो मैं सारी सुन लेता और बातों ही बातों में मुझे ये भी पता चल गया था कि फलां संदूक के अंदर आपके सारे खतूत पड़े हुए थे। ये देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को सख्त गुस्सा आया और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त उस खतून को गिरफ्तार कर लिया और उसका सर कलम कर दिया।